मंदिर शावा तेरे, तुझ बिन अवर न जाना मेरे साईबा। गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब सन तुम्हारी। सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद भावै सोई चंगा। एक नानक की अरदासे, बेशुमार अथाह अगणित अतुल्य। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोलै। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। पौड़ी ढाडी तिसनो आखिए, जे खसमै धरे प्यार। दार खड़ा सेवा करे, गुर शब्दी विचार। ढाडी तिसनो आखिए, जे खसमै धरे प्यार। दार खड़ा सेवा करे, गुर शब्दी विचार। ढाडी दार घर पाएसी, सच रखै उर धार। ढाडी का महल अगला, हर कै नाई प्यार। ढाडी की सेवा चाकरी, हर जप हर निस्तार। ढाडी का महल अगला, हर कै नाई प्यार। ढाडी की सेवा चाकरी, हर जप हर निस्तार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता जी दीयां बख्शिशां ते बरकतां दा अज दिन है। अज दा वो इतिहासक दिहाड़ा है। साहिब सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने यह पावन बाणी दा ग्रंथ तिहार करवा के 1 साल का समा
ਸਾਖੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀਆਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਹਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਸਨ, ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਸੀ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਰੱਬੀ ਬਾਣੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹੀ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਲੈਣ। ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਣ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਸ੍ਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ,
जिस नूं अज कल 68 तीर्थ कहते हैं। दुख भंजनी साहिब दे नाल अस्थान है जिथे हर वेले श्री अखंड पाठ साहिब हुंदा है। ਉਹਦੇ नाल ही अगे करके एक थड़ा साहिब बनया होया, काफ़ी वड्डा थड़ा साहिब संगे मरमर लग्या होया ते उत्ते ਉਹਦੇ एक पालकी साहिब भी बनी हुई है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रकाश नहीं हुंदा गुरु साहिब दा, संगे मरमर दी सिर्फ पालकी बनी। वो इतिहासक जगह है। पालकी इसलिए बनाई है भी पालकी दे विच पोथियां साहिब इत्थे लियांदियां सन, पालकी इत्थे लिया के सुशोभित कीती सी। पहलों लिया के पोथियां उत्थे सुशोभित कीतियां। संगतां ने आईयां हुईयां बाणी दीयां पोथियां दा सन्मान किया, सत्कार किया। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी ने उस तो अगले दिन शहीदां गुरुद्वारा ये नाल करके स्थान है हरामसर। हरामसर का स्थान उत्थे एक बेरी है, हुण सिर्फ एक बेरी है। पहला उत्थे कई तरह के रुख हुंदे सी उस जमाने में। 5 तरह के दरख्त उत्थे सन जिसनों कहते सी पंच बटी। बटी नाम हुंदा दरख्त का, बूटा जिवें आपां बूटा कह दिंदे कि काहदे बूटे ने। तो 5 तरह के दरख्त आले दुआले सन ते गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने वचन किया कि इत्थे सरोवर तैयार करो। महाराज ने पहला टक लाया, संगत ने हुक्म हो गया, संगत ने उत्थों मिट्टी कढ़नी शुरू की थी। शाम तक जिन्नी क मिट्टी निकल गई, महाराज कहन लगे सेवा इको ही दिन दी सी, ये इन्ना ही सरोवर रहूगा। और हुण भी वो सरोवर बड़ा नहीं, छोटा जिहा सरोवर है। ते नाम गुरु साहिब ने दिता रामसर। हरामसर उसका नाम रखिया ते कहन लगे इस सरोवर के किनारे ते 3 तंबू लाए जान। 3 तंबू लाए गए, 3 टेंट लाए गए। एक टेंट दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी दा आसन जमीन ते, जिहड़ा विचकारला टेंट सी उहदे विच बाणी दीयां पोथियां ते लिखण समगरी, ते जिहड़ा उस तो अगला टेंट उहदे नाल जोड़िया गया वो भाई गुरदास जी दा। इधर भाई गुरदास जी विचकार गुरबाणी पोथियां ते नाल गुरु अर्जन देव जी। इत्थे ही बस नहीं किया, कुछ दूरी ते सतगुरां ने पहरेदारी भी कायम करवाई कि सिखां ने एक दूसरे नाल संसारी वचन कोई नहीं करना, आपो अपने पहरे ते आके खलोना। धन धन बाबा बुढ़ा साहिब जी सेवावां लाउणगे, किने जाना अज, किने शाम नूं जाना, किने सवेरे जाना। बाबा बुढ़ा साहिब जी सेवा देणगे, वो आके इत्थे बाणी की सेवा विच खड़े होया करनगे, ताकि कोई भी जानवर, कोई भी आदमी बाहरों इस चल रही सेवा दे विच विघन ना पावे। ते हर रोज़ ये दिन रात सेवा चलेगी और जदों तक के बाणी का कारज होना असी इत्थे ही रहांगे।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ है, सतगुरुआं दा घर उत्थे है, महल। हरमंदिर साहिब है, बन चुके है। परंतु गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह घर नहीं गए, बाणी की सेवा विच ही रहे। देखो कितना ये खास कार्य है, विशेष कार्य है। सवेरे एक वारी जाते सी, सवेरे एक वारी महाराज ने जाना हरमंदिर साहिब, ताकि ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ने उन्होंने असी दर्शन दे सकीए। बचन नहीं सी करते, समा नहीं सी उन्होंने चलाते, जाना सब उत्ते निगाहबानी करके आ जाना। बाकी जितनी सेवा सी संगतां नूं बचन सुनाने है, कीर्तन सुनाना है, की होना है, गल बात जिहड़ी वो सारी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं संभालते। नाल ये भी बख्शिश की कि बाबा बुढ़ा साहब जी दे पास ही सब रहमतां ने, तुसी साडी इंतजार ना करो, असी एक महान कार्य कर रहे हाँ। तो फिर उधर बाणी का 1 साल लग्या देते। इन्नी परमेश्वर की बाणी कोई साधारण चीज़ तो है नहीं, रब दे बोल ने। कितनी ये देहांत ये वरती गई है। आपां कहने रागां दे निर्धारित नहीं, निर्धारित किसी चीज़ दे नहीं है, ये किसी चीज़ के अंडर नहीं है। ये उत्ते कोई भी संसार का कानून लागू नहीं, वो अगे छोटी नहीं है। यह बाणी सब तो उत्ते ही है। रागां की भी व्याख्या महाराज ने दे दी कि जिमें तुसी राग नूं राग समझते, असी वो नहीं कहते, तुसी समझते हो राग एक अलाप है। पर गुरु साहिब की व्याख्या करते हैं, सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले। कहते सोरठ तां है जे कोई अपने अंदर वसते हुए वाहिगुरु पिता जी नूं लभे। तनासरी तनवंती जानिए भाई, जां सतगुर की कार कमाए। महाराज ने कहते रहा वो तो एक शक्ति दस रहे ने इस चीज़। फिर जेड़े राग ने ये इलाकों के होते हैं, इलाके वादी होंगे। कलकत्ते का राग हो रहा है, बंगाल में होर राग गाया जाता, दूजी थां ते होर गाया जाता। अलग अलग ने, घराने ही अलग अलग ने। पर बाणी जिहड़ी है समुची मनुखता वास्ते, ये उत्ते इलाकाई पाबंदियां नहीं हैं। ये बहुत कुछ है, की भेद महाराज ने रखे है। साड़ी सुरती उन्होंने पकड़ी नहीं सकती। साडा जिहड़ा दिमाग का अंटीना ना इन्नी गिरफ्त रखता ही नहीं, बहुत छोटा। इन्ना वड्डा ये नहीं है भी पकड़ ले, हर एक चीज़ नूं पकड़ी जाए। ये अंदर सिर्फ इन्नी क पावर रखती कि अंदर वसदे हुए सच्चे रब नाल अपना चैनल एक कर सकता। यह पावर इनू देती, कनैक्शन ਇਹਦਾ बनाता। तो जे जुड़ जाएगा तो जीवन की बाजी लै जाएगा। ये विच की राज रखे हुए, ये तो मेरा सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज आप नारायण है, वो जानते। जिन्हां दे राही बाणी आई है वो जानते, असी नहीं जान सकते। उस तो बाद बाणी आई हुई नहीं। बड़े बड़े महात्मा हुए, बड़े बड़े नाम दिते गए,
यह पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी है। कोई 108 है, कोई 111 है, कोई 121 है, कोई 131 है। बड़े बड़े श्रद्धालु उन्होंने मगर ने, बड़ियां संगत उन्होंने मगर ने, इकट्ठ बड़े ने, मेले बड़े लगते, जन्मदिन मनाए जाते, बरसियां मनाई जाती, पर किसी के जबान तो रब की बाणी नहीं आई। परमेश्वर पिता दे चुने हुए ये महान पुरख जिन्हां दे राही सच्चे रब ने अपना पैगाम दिता है। ये साई मत विच बड़े लोग आए है, पर मुड़ के क्राइस्ट तो नहीं ना आया। महमदी दीन विच बड़ी दुनिया आई है, बड़े फकीर ने। हजरत मुहम्मद साहब तो नहीं ना आए। तो साध संगत जी, यह बाणी नूं एक साल दे विच गुरु अर्जन पातशाह महाराज ने तरतीब दे के लिखवाया। ग्रंथ साहब तैयार हो गया। नाल एक होर गुरसिख का जिक्र आउंदा है, उहदा नाम सी भाई बन्नू। स्याही तैयार करनी, स्याही एक तरीके नाल तैयार की जाती सी उह जमाने दे विच। ऐसी स्याही जिहड़ी ना तां कागज उत्ते फैले, ना जिसदा दूसरे पासे रंग जावे, और जिसनों पानी भी खराब ना कर सके। कागज भिज जाए जे किते तां भी शाही जिहड़ी आ अपनी थां दे उत्ते अखर बनिया रहे। बड़े तरीके नाल तैयार होंदी सी, बड़ा टाइम लगता सी। भाई बन्नू उहदे मुखी सन। नाल फिर कलमा, कलम मजालका कोई छोटी वड्डी हो जाए, जां कोई मोटी हो जाए, पतली हो जाए, ना इको जी लगाई। बड़ी एहतियात, बड़ी सावधानी, ऐसे ढंग नाल बाणी लिखी गई। ग्रंथ तैयार हो गया ते सारे गुरु अर्जन देव महाराज ने स्नेह भेते। भादों सुदी एकम नूं संगत जी श्री अमृतसर आओ। हरमंदर साहब पहला बनाता। जिवें मावां बच्चे ने आना हुंदा है ना, तो उहदे लई पहले ही कपड़े बना लैंदियां। अजे जन्म नहीं होया, पर बच्चे दे लई कपड़े पहले ही, गिफ्ट पहले ही कर दिंदे। बाणी ग्रंथ तैयार करन तो पहलों इहदा प्रकाश कित्थे करना है, तो उहदे लई हरमंदर साहब पहले ही बनाया। हरमंदर साहब बना के फिर बाणी का ग्रंथ तैयार किया। संगतां एकत्रित होईयां ते रात लंघी। अज दी सवेर जदों हुई अमृत वेला, तां राम सर तो पहला नगर कीर्तन आया। यह सिख पंथ का पहला नगर कीर्तन जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की अगवाई दे विच गुरु अर्जन देव महाराज जी की रहनुमाई विच आया। सारियां संगतां राम सर गईयां ने। फिर उतों बाबा बुढ़ा साहब जी ने शीश ते अपने मंजी साहब उत्ते पोथी साहब उहदे सुशोभत है, सुखासन है। ते छोटा स्वरूप नहीं है, काफ़ी वड्डा स्वरूप आओ। तुसी श्री करतारपुर साहब उहदे दर्शन करो। बाबा बुढ़ा साहब जी की उम्र उस वेले काफ़ी उम्र सी। साखीकार लिखते हैं 98 साल उम्र सी। 98 साल, 2 साल ही घट ने 100 तो। किड्डे तकड़े सी बाबा बुढ़ा साहब जी। शरीर करके कितना बल सी उन्हां दे विच। वो तो 125 साल रहे संसार ते, उस तो बाद भी 27 साल रहे ने। ते ग्रंथ उन्हां सीस ते चुकिया। मंजी साहब के उत्ते ग्रंथ है, मंजी साहब चुकी है 100 साल के नेड़े बाबा बुढ़ा साहब जी।
गुरु अर्जन देव महाराज जी ने चौर साहब किया। जिन्हां दे अपने सीस उत्ते चौर हुंदा सी, अज वो चौर दा मालक आप चौर पकड़ के बाणी दे उत्ते चौर साहब कर रहे हैं। ते संगतां इस तरह श्री हरमंदर साहिब जो अज तुसी हरमंदर साहिब देखते हो, यही दर्शनी ड्योढ़ी प्रवेश हरमंदर साहिब जाके जिथे अज प्रकाश हुंदा उथे ही प्रकाश महाराज ने धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का करवाया। ते बाबा साहिब जी नूं जदों गुरु अर्जन साहिब जी उत्थे विराजमान सी, कहंदे फैसला गुरु अर्जन साहिब ने लास्ट रात नूं लिया। महाकवि भाई संतोख सिंह जी के लिखण मुताबिक जो उन्होंने इतिहास विच लिखिया कि सवेरे प्रकाश करना, संगत सारा प्रोग्राम बन चुके है, ते गुरु अर्जन देव महाराज जी लेटे हुए ने बाणी दे पास, ते मन विच वाहिगुरु पिता जी एक संकल्प उन्होंने दे दिंदे है कि गुरु अर्जन ये बाणी की सेवा कल नूं कौन करूगा। तुसी नहीं करनी, ये सेवा सिखां नूं देनी है। ते किहड़े सिख नूं सेवा दिती जाए? ते कहंदे ने गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने सारी संगत ते अपनी निगाहबानी की। ते सारी संगत विचों निगाह लजांदियां निगाह उन्हां दी जाके बाबा बुढ़ा साहब जी उत्ते ठहर गई। ये सेवा नूं यही निभा सकदे। वेखो यह कितनी महान दात है कि इहदी सेवा दे लई सारे पंथ विचों महाराज नूं होर कोई सिख मिले ही नहीं। बड़े बड़े बंदगी वाले सी, बड़े बड़े भगती वाले सी। यह कितनी उच्ची सेवा है। साध संगत जी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं भी लगदा पहला नहीं सी दस्सिया भी तुसी सेवा करनी। वो तो सवेरे जो उत्थे आए उन्हें उदों ही कहा होना बाबा जी हुण तुसी लाओ सीस ते। ये सारे गुप्ती राज सन जिहड़े गुरु अर्जन देव महाराज जी नाल ही प्रगट कर रहे थे। लिया के सुशोभित किया, मंजी साहब लग गई, चंदोआ साहब लग्या होया। तो उस वेले फिर बाबा जी नूं ही बचन किया, बाबा जी अब खोलो ग्रंथ, खोलो मैंने प्रकाश करो। अखंड पाठ खोलिया होया। आम तौर के उत्ते पंजाब के लोग कहते सी भाई सोडे घरे अखंड पाठ खोलिया होया, ते कई कहते सी नहीं भाई टोको ना, खोलना नहीं हुंदा, प्रकाश करना हुंदा। पर इतिहास विच खोलो ही ग्रंथ लिखा हुआ। बाबा जी अब खोलो ग्रंथ, अजे तुसी खोलिया ही है, प्रकाश तो अजे आऊगा जो खोलोगे तो प्रकाश आऊगा। फिर बाबा जी अब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज़। आवाज़ जिन्हों आप हुक्मनामा कहने नूं क्या आवाज़, लेहो आवाज़। किहदी आवाज़ लो? परमेश्वर की आवाज़ लो। वाहिगुरु पिता की आवाज़ है ये। आवाज़ लैनी है उसकी, अपनी आवाज़ नहीं है। अपनी किवें आवाज़ हो सकती है? यह तो आवाज़ उहदी है वाहिगुरु पिता जी की। लेहो आवाज़ सुने सब पंथ, ते सारा पंथ सुने। केड़ा पंथ? जेड़ा भाई आत्मक जीवन का मुतलाशी है, ढंडाऊ है, जेड़े चाहुंदे ने भी असी सच्चे रब दा दीदार करना, वो सुन ले। ते कहंदे अदब साहित तब ग्रंथ जी खोला। देखो अदब साहित लिख,
बादब सत्कार नाल बाबा बुढ़ा साहब जी ने ग्रंथ नूं प्रकाश किया। ले आवाज बुढ़ा ता बोला। वेखो दो लफ्ज़ आ गए, ले आवाज बुढ़ा तब बोला। बोला हुण बाबा बुढ़ा, बाबा बुढ़ा जी बोले पर आवाज वाहिगुरू दी, आवाज ओदी लई। सूही महला पंजवां संतां के कारज, हर कम करावण धरत सुहावी, विच अमृत। हुक्मनामा साध संगत जी उस वेले प्रगट होया, पहला हुक्मनामा गुरु ग्रंथ साहिब जी तो ते नाल एक वचन किया, ऐ साध संगत जी जेड़ी साडे अंदर रूहानीयत है, गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने कहा यह रूहानीयत सदा रहन वाली है, पर तुहाडे सामने उदों तक है जदों तक ये शरीर है। जदों तक महाराज कहन लगे मेरा शरीर तुहाडे पास है, तां तुहानू इस रूहानीयत दे इस तरह दर्शन होणगे, पर मेरा शरीर सदा रहन वाला नहीं है। ना पहले गुरुआं दा रहा, ना मेरा रहना। पर जेड़ा ग्रंथ प्रकाशमान किया गया यह गुरु का हिरदा है, यह उत्तम है, सब काल रहा है, यह हमेशा रहूगा। और किते भी कोई दुनिया के अंदर किते भी कोई सिख जेड़ा है जिथे भी होएगा, ये गुरु की शक्ति उत्थे पूरी होएगी। 1000 आदमी की 1 करोड़ आदमी भी जपजी साहिब पढ़ता हो, ध्यान नाल पढ़ता हो, तां गुरु सारियां दे नाल ही होएगा। पर जे शरीर करके फिर जिन्हां दे पास गुरु होऊगा कोले उन्हां दे कोल होऊगा, बाकी सारे दूर होणगे। पर बाणी करके सब दे नाल इक्को वेले होऊगा। इसलिए गुरसिखो सानू वो गुरु दे दिता महाराज ने कि जेड़ा उत्तम है सब काल रह है। ये जेड़ा पवित्र कागजे दे ते लग्या होया ये पुराना हो सकता, ये अखर लिखे हुए जिहड़ी स्याही नाल ने वो स्याही मध्यम पै सकती, पर गुरु ना कदे बिरध होने वाला, ना कदे इहदी शक्ति घटन वाली है। इहदी समर्था सदा कायम दैम सदा पातशाही, दोम न सेम एक सुआही। इहदी पछाण करो गुरसिखो। जिवें भगत नामदेव जी ने कहा है, चंदी 1000 आलम एकल खाना, हम चीनी पातशाह सामले बरना। ये सामले अखर जिहड़े ने इन्हां अखरां दे अंदर वाहिगुरू पिता जी आप बैठे ने स्वामी मालिक। तो गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह कहते ने भाई ये बाणी दे नाल जुड़ के गुरसिखो तो सानू हर एक खुशी मिलेगी, हर एक खुशी मिलेगी। ऐसी कोई दात नहीं जिहड़ी तुहाडे तो दूर रहे, क्योंकि जदों तुसी रब दी गोद विच बैठ गए फिर सच्चे रब दियां सारियां दातां ने। साचे साहिबा क्या नहीं घर तेरा, घर तां तेरे सब कुछ है, जिस दे हैं सो पावे। तो जेड़ा शब्द बख्शिश हो रहा है अज सारियां संगतां नूं इस पवित्र इतिहासक दिहाड़े ते लख लख मुबारकां होण। साध संगत जी सचखंड श्री हरमंदर साहिब जी तो लैके दुनिया भर के अंदर ये गुरपुरब मनाया जा रहा है। आप इस स्थान ते महाराज का पवित्र दिन मना रहे हाँ। संगतां ने बड़े प्यार नाल सेवा की है, कर रही ने। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता जी सारियां दी सेवा सफल बनावे। भाई साड़ी वार वार बेनती है
कि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज पिता की बाणी नाल भाई जुड़ो, बाणी का पाठ करो। गुरसिख के घर विच बाणी दीयां पोथियां होनियां चाहिदियां। जे हो सके महाराज का स्वरूप सुशोभित करो, पर सोहनी थां होवे। जे घर छोटा है तां पोथियां साहिब रखो। जिन्हां दे कोल साध संगत जी घर भी नहीं सी, बार भी नहीं सी, कुछ भी नहीं सी, जदों सिखां उत्ते वो भी समा सी, तां एक थैली बना के उहदे विच पोथी पाई हुंदी सी गुरसिखां नूं, किरपान भी नाल। यह गुरसिखां दी यूनीफॉर्म देखो तुसी, कि पूरा बाणा धारण किया, शास्त्र धारण किए हुए है, पर शास्त्रां दे नाल नाल एक नाल थैला भी रखिया हुआ है। अज भी तुसी निंग सिंघां कोल देखोगे, ते जे उन्होंने पुछो भी ये की है, ते वो आ चोले नूं लगियां हुईयां जेबां नूं नहीं कहंदे खजाना, वो कहंदे ये गुरु का खजाना। और जेड़ी पोथी साहिब ना रखी हुंदी उन्होंने खजाना कहंदे ने। सचमुच उही खजाना है। प्यो दादे का खोल डिठा खजाना, तां मेरे मन भया निधाना। यह गुरु अर्जन देव महाराज पातशाह ने बचन किए। यह बाणी दे अंदर कोई गुरु साहिब वेले तो नहीं, ये विच करीबन 1000 साल दे भगतां दी बाणी अंकित है। पर सारी बाणी दे विच इक्को ही प्यार है। धर्म का अर्थ की हुंदा है? जिथे दिली प्यार एकता है उत्थे ही धर्म है। यह धर्म की बुनियादी गल है। जिथे एकता नहीं उत्थे धर्म नहीं। धर्म का पहला मुढ़ला सिद्धांत एकता का। इसे करके शक्ति महापुरुषों की बाणी इक्को ही लड़ी विच परोई हुई है, इक्को ही प्यार है, इक्को ही विचार है। किते कोई तुसी फर्क नहीं पा सकते। जे कोई फर्क पाएगा तो उसकी अपनी अकल होएगी फर्क पाने वाली। इन्हां दे विच कोई फर्क नहीं, ना कबीर साहिब विच, ना गुरु नानक साहिब विच, ना भगत सदने विच, ना गुरु अर्जन देव महाराज। इक्को ही रूप ने सारे। पर बेशर ने इन्हां दे राही अपनी बाणी, किसे दे राही कितनी बाणी, किसे दे राही कितनी बाणी की दात बख्शिश की है। तो ये रहमत पौड़ी दे अर्थ आपा करके समाप्ति करिए। ढाडी तिसनू आखिए जे खसमै धरे प्यार। ढाडी पंथ दे अंदर जेड़े ढाडी ने इतिहास सुनाउंदे, पर गुरबाणी मुताबिक ढाडी दी जो निशानी दसी है, डेफिनेशन दसी है, परिभाषित किया है, वो बहुत उच्चा लफ्ज़ है। ढाडी तिसनू आखिए, उसनू ढाडी कहिए। जे खसमै धरे प्यार, जेड़ा खसम नाल प्यार करता है। खसम कौन है? खसम तुहाडे अंदर वाहिगुरु पिता की जिहड़ी जोत है, वो तुहाडा सारियां दा आपो अपनी थां दे उत्ते खसम है। दार खड़ा सेवा करे, हर वेले उहदे विच ध्यान रखे। इहनूं सोदर भी कहा होया। ओहदे दर ते खड़ा, हाँ अकल दे विच दर है उसका। यह दर ते खड़ा इत्थे अपनी सुरती नूं टिका के संभाल के उहदी सेवा विच लग्या रहे। पर किवें करे सेवा? फरमाया गुर शब्दी विचार, सतगुरु दे शब्द दी विचार करदा होया अपने अंतरात्मे मालक पिता दी जोत दे ध्यान विच रहे। ढाडी दर घर पाए सी, फिर दर तो जाऊ अगे, दर तो अगे हिरदे घर विच पहुँचूगा।
सच रखै उरधार। जदों हिरदे घर विच जाएगा तो फिर सच नूं धारण करूगा। ढाडी का महल अगला, उस तो अगली अवस्था परमेश्वर दे महल नूं प्राप्त करूगा। हर कै नाए प्यार, परमेश्वर पिता नूं नाम दी दात देणगे ते उस नाम दे प्यार द्वारा ढाडी ऐन अंदरों बाहरों सरशार हो जाएगा। ढाडी की सेवा चाकरी हर जप हर निस्तार, ये है ढाडी दी सेवा। ये सेवा साध संगत जी अपने आप विच मालक पिता नाल सुरती लाउणी, पर लाउणी ओ जिवें चाकर हुंदा ना सेवा विच ड्यूटी ते हाजिर हुंदा, उहनूं चाकर कहंदे ने। इस तरह हर वेले चाकरी विच रहण वाला हर जप हर निस्तार, हर वेले सच्चे रब दीयां गल्लां करदा बाणी द्वारा, बाणी दे बचनां द्वारा, ते फिर अपने आप नूं भाव सागर तो पार कर लैंदा है। ऐसा ढाडी सच्चे रब दे चरनां विच जदों खलो जांदा है, फिर रब उहनूं कहंदा की चाहुणा है, तां ओह कहंदा मंगण तां बहुत कुछ आया सी, पर हुण दाता तेरा दीदार करके मैनू तां दुनिया भुल ही गई, वो तां बहुत छोटी रह गई, मैं वो किवें मंगा। कहंदे ने ढाडी को मंगण चित ना आवे। तो साध संगत जी गुरु मेहर करे सानू सतगुरु सारिਆਂ ਨੂੰ ऐसी अवस्था का दान बख्शे ताकि आपां गुरु साहिब दे इन्हां महान उच्चे सुच्चे बचनां नूं अपनी जिंदगी दे विच प्राप्त कर सकीए। दाता मेहर करे सारिਆਂ दा हार्दिक धन्नवाद। मेरियां भुल्लां बख्श लैणियां साहू संगत जी का प्रबंधक वीरां दा सारिਆਂ दा धन्नवाद जी। प्यार सत्कार सहित गुरु फतेह बुलाओ। अगला प्रोग्राम मानयोग चावला जी सरवण करा रहे ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु साहब जी बड़े भगवान करने वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साधन किया वाहिगुरू जी साधन जी फिर जवाब नहीं आया। सारे कृपा करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जानते हैं आप जी गुरु चला जो है सनातन आ रहे इन मेकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ गुरु ग्रंथ साहब पूरे 1 साल लगा। और किस तरह गुरु ग्रंथ साहब तैयार हुए, किस तरह लेके आए हैं भाई मनोज को पोषण लेके आए हैं मनोज। और 1 साल पूरा लाया ने गुरु ग्रंथ साहब तैयार होने से। और सारी चोली पा के गुरु ग्रंथ साहब जी अपने आप जिस तरह के गुरु बोलते सन कि असी भी रहा गुरु ग्रंथ साहब है बाणी जी बाणी गुरु है बाणी गुरु है बाणी बाणी अमृत सारे गुरबाणी कहे सेवक जो माने पटक गुरु सारे सत्संग जी वो पटक विटनेस और आप जी ने इस राय गुरु के बाणी राय आज जीवन सफला कर सकते सत्संग सारे को